So, hello everyone. So, today we are going to discuss about the GIT of meadorhinum. Continuing that medicine, meadorhinum. So, stool कैसा होता है? Clay color का होता है, sluggish होता है. The patient cannot strain from the sensation of prolapse of rectum. तो patient है वो strain नहीं कर सकता है, force नहीं लगा सकता है क्योंकि उसको लगता है कि उसका rectum क्या होगा? Prolapse कर जाएगा. Constriction and inertia of the bowel with a ball-like stool. Constriction होता है, inertia होता है bowels में with a ball-like stool as seen in lattices. Can only pass through by leaning very far back, very painful as if there was a lump on the posterior surface of sphincter, so painful as to cause the tears. और वो कैसे पास कर सकता है? जब पेशेंट अपने आप को पीछे की तरफ लीन करेगा तभी वो अपना स्टूल पास कर सकता है. So leaning very far back with and that too very painful as if there was a lump on the posterior surface of the sphincter, so painful as to cause the tears. शार्प निडल लाइक पेन. कैसा पेन होता है? शार्प निडल लाइक पेन होता है. कहाँ होता है? रेक्टम में होता है. Oozing of the moisture from the anus fetid odor with a fish brine of a fish brine. And anus से एक moisture यूज करता है जिसका जो odor होता है बहुत fetid होता है, foul होता है, like the fish brine. किससे कंपेयर किया? Fish brine. As seen in causticum and Hipposus also. Urinary system में क्या होता है कि urinary system में इसमें patient में renal caliculi होगी, ठीक है? तो backache होगा in the renal region और जो profuse urination से आराम मिलेगा, जैसे कि लाइको में भी होता है. ठीक, अब आराम क्यों मिलता है? क्योंकि ऐसा है कि जो renal colic होता है, जो पेन हो रहा है renal region में, there is an intense pain in the ureter with a sensation of passing of calculus. तो मतलब कि जो स्टोन्स हैं वो पास कर रहे हैं यूरेटर से. अब पास करके बाहर निकलेंगे तो यूरिनेशन से तो आराम मिलेगा. सो एज वेल एज देयर इज अ क्रेविंग फॉर आइस आल्सो. तो इसमें क्या है कि सीवियर बैकएक इन द रीनल रीजन व्हिच इज ameliorated by the profuse urination. There is a renal colic, intense pain in the ureter with the sensation of passing of the calculus. There is a craving of the ice. And there is a nocturnal enuresis also. Passes enormous quantity of ammoniacal high-colored urine in the bed every night. अब देख रहे हैं nocturnal enuresis है, ammoniacal high-colored urine in the bed. So means ammonia का quantity इस urine में ज़्यादा है. Which is aggravated by overwork. और ये तब हो रहा है जब वो पेशेंट बहुत ओवरवर्क कर रहा है, ओवरप्ले या एक्सट्रीम ऑफ हीट है या एक्सट्रीम ऑफ कोल्ड है. When the best selected remedy faced with a history of psychosis. Painful tenesmus of the bladder and bowel when urinating. बहुत टेनिस्मस है ब्लैडर में, बोवल में जब वो पेशेंट यूरिनेट करता है. Then female reproductive system की बात करें, then the women with a chronic ovaritis, salpingitis, pelvic cellulitis and fibroid and cyst. And other morbid growth of the uterus and ovaries. उनमें ये दिया जाता है. Especially if the symptoms point to the malignancy with or without the psychotic origin. चाहे उसमें psychotic origin present हो या ना present हो, then too. अगर ये सारी conditions है, chronic ovaritis, salpingitis, pelvic cellulitis and fibroid या cyst, तो आप इस medicine के बारे में सोच सकते हो. मीडियोराइनम के पेशेंट में जो फीमेल्स होती हैं उनमें मेंसेस कैसे होते हैं? पहली बात तो प्रोफ्यूज तो होगा ही होगा, ठीक है, क्योंकि एक्सट्रीम्स में जा रहे हैं. डार्क होगा, क्लॉटेड होगा. देन स्टेन्स डिफिकल्ट टू वॉश आउट. जो भी स्टेन्स आएंगे दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू वॉश आउट. इससे पहले हमने एक मेडिसिन पढ़ी थी दैट वाज द मैककार्ब एंड उसमें भी स्टेन्स दैट वर डिफिकल्ट टू वॉश आउट. देन मेट्रोरेजिया में क्या है? At climacteric, profuse at 4 weeks, flow dark, clotted and offensive in gushes on moving with a malignant disease of uterus and intense menstrual colic, but drawing up of knees and terrible bearing down labor-like pain. Menstrual colic का pain ऐसा होता है like labor-like pain, terrible होता है, जिसमें patient अपने knees को drop करता है and जो patient होता है must press the feet against the support in as in labor. तो इसमें क्या होता है? मेट्रोरेजिया मीन्स जैसे मेट्रो चलती है थोड़े थोड़े दिन पे पीरियड्स आना, मेंसेस आने. तो एट क्लिमेट्रिक मीन्स एट द एज जब मीनोपॉज बहुत पास आ रहा हो. प्रोफ्यूज फॉर वीक्स, बहुत हफ्तों तक बिल्कुल प्रोफ्यूज होगा. फ्लो इज वेरी डार्क एंड क्लॉटेड, ऑफेंसिव, बदबूदार. इन गशेस, बहुत ज्यादा एक साथ. ऑन मूविंग विद मैलिग्नेंट डिसीजेस ऑफ यूट्रस, कोई डिसीज भी एसोसिएटेड होगी. इंटेंस मेंस्ट्रुअल कोलिक, ड्रॉइंग अप ऑफ नीज, टेरिबल बियरिंग डाउन लेबर लाइक पेन, must press the feet against the support as in labor. Then intense pruritus is also seen of labia and vagina, and that is also aggravated by thinking of it. Breast and nipples are sore sensitive to touch.
ब्रेस्ट इज कोल्ड एज आइस। सी मेन चीज है, अभी आपको दिखेगा कि ब्रेस्ट इसकी कोल्ड है एज आइस, लेकिन रेस्ट ऑफ द बॉडी इज वार्म। दिस आई एम टॉकिंग ड्यूरिंग द मेंसेस, ठीक है। देन रेस्पिरेटरी सिस्टम, अस्थमा। अब क्यों होता है इस पेशेंट में अस्थमा? थिंक ऑफ इट, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट कि पेशेंट में अस्थमा है? क्योंकि देयर इज अ स्पाज्म ऑफ एपिग्लॉटिस, देयर इज अ वीकनेस ऑफ एपिग्लॉटिस, ठीक है। लैरिंग्स बिल्कुल स्टॉप हो गई है, नो एयर कुड एंटर, उसमें से कोई एयर नहीं जाएगी। आराम लेकिन कैसे मिल रहा है? जब पेशेंट फेस के तरफ से लेट रहा है, बाय लाइंग ऑन द फेस एंड प्रोट्रूडिंग द टंग आउट। सोरनेस ऑफ लैरिंग्स प्रेजेंट है, एज इफ अल्सरेटेड हो गया है। डिस्निया है, पेशेंट सांस नहीं ले पा रहा है। देयर इज अ सेंस ऑफ कंस्ट्रिक्शन, दबा दबा से लग रहा है, बंधा हुआ लग रहा है। कैन इनहेल विद ईज बट नो पावर टू एक्सेल, आराम से सांस तो ले रहा है बट एक्सेल नहीं कर पा रहा है, लाइक इन सम म्यूकस। कफ की बात करूं तो ड्राई कफ है, एंड में देखोगे आप तो इसको पता चलेगा कि ये एपिकैक के साथ कंपेयर किया गया है। इंसेंट severe painful as if mucous membrane were torn from the larynx। ऐसा लगेगा, इतना ड्राई कफ है, ऐसा लगेगा कि जो म्यूकस मेम्ब्रेन है बिल्कुल टॉर्न हो चुकी है फ्रॉम द लैरिंग्स। और लाइक कफिंग इन अ बैरल, जो ऐसे बड़े से ड्रम होते हैं उसमें जब कफ करते हैं जैसी आवाज होती है वैसी आवाज आएगी, डीप हॉलो लाइक कफिंग इन अ बैरल। इसका जो कफ है नाइट के टाइम एग्रेवेट करेगा, स्वीट अगर खा लिया है, कुछ मीठा मिठाई खा लिया है तो एग्रेवेट करेगा। और लाइंग डाउन, पीठ के बल लेटने से एग्रेवेट करेगा। आराम कैसे मिलेगा? अगर वो स्टमक की तरफ से लेटे तो उसे आराम मिलेगा। इट इज एम्लोरेटेड बाय लाइंग ऑन द स्टमक। स्प्यूटा की बात करें देन एल्ब्यूमिनस स्प्यूटा होगा, फ्रॉथी एंड स्मॉल, ग्रीन, ग्रीन कलर मेन है, ग्रीन याद रखना है। बिटर बॉल्स, विस्केट, डिफिकल्ट टू रेज, ठीक है, उसको गले से बाहर निकालना इज क्वाइट डिफिकल्ट टू। देन incipient consumption and there is a severe pain in the middle lobe, ये याद रखने वाली चीज है, that there is a severe pain in the middle lobe, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे नेक एंड दी बैक।